Hello students, myself Akash Saxena and I am back with lecture 3 of spreadsheet. Okay, the chapter is spreadsheet. Okay, now the session 3 is first point is enter data in spreadsheet. Okay, we can enter data in spreadsheet. We know that cell is the intersection of rows and column. Okay, so spreadsheet enables us to work with different kinds of data for organizing, calculating and presenting information. We will start by entering data in a spreadsheet. ओके तो स्प्रेडशीट हमें क्या करती है, वर्क करने के लिए प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कैलकुलेटिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन. तो हम स्टार्ट करेंगे एंटरिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट. ओके, एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज MS ऑफिस एक्सेल 2013 में. Okay, the second one is relevant knowledge. Okay, we have already seen how data is entered in the worksheet. और मैंने एक वीडियो भी बनाया है प्रैक्टिकल करके इसका. Then you can see that video. Okay, open the workbook, world ranking created in the previous session. Okay, so editing in the data. Okay, the data entered in the cell in a worksheet are edited later. The steps to edit data in a cell are डबल क्लिक इन अ सेल टू द डेटा इन इट. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को एडिट करने के लिए इफ़ यू हैव राइट समथिंग इन अ सेल एंड यू वांट टू एडिट दैट. ओके, तो यू हैव टू क्या करना है, डबल क्लिक करना है उस सेल पे. ओके, यू हैव टू डबल क्लिक इन अ सेल टू एडिट द डेटा इन इट. ओके ओके, or click in the cell and press F2. Yes, F2 is the short key to edit the data in a cell. Okay, if you want to edit the data in the cell, then you can use F2 key. Okay, repeat, F2 is used to edit the data in a cell. Okay, और select the cell and edit the data in the formula bar. आप formula bar में भी जाके उस data को edit कर सकते हैं. तो now there are three methods to edit the data. First one is double click on the cell and you can edit that data, and second one is press F2 key, and third one is select the cell and edit the data in the formula bar. Okay, now second one, that is exercise. Okay, open MS Excel and do the following. You generally visit the market with your parents to purchase the household goods. Now make a list of any 10 household goods for their with their price. Okay, आप मार्केट गए और आपने कुछ परचेज किया है, देन यू कैन सी दैट लिस्ट इन द पिक्चर. दैट एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें राइस की प्राइस है, वेट फ्लोर. ये शीट आपको एक्सेल में क्रिएट करनी है. इफ़ यू हैव योर सिस्टम इन योर हाउस देन यू कैन क्रिएट दिस लिस्ट. ओके, और किसमें, MS ऑफिस एक्सेल 2013. यस. ओके, द सेकेंड वन इज open MS Excel and create a workbook according to the instruction. Use cells from A1 to J7 and create a timetable of your class. Okay, तो हम टाइम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और जनरली जितने भी टाइम टेबल्स होते हैं यू कैन सी दैट शीट, और वो सब MS Excel में ही क्रिएट होते हैं. ओके, तो सेव द फाइल विथ फाइल नेम योर नेम /Excel इन T ड्राइव. ओके, तो आपको फाइल को सेव भी करना है. ओके, सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+S. करेक्ट. ओके, नाउ मूव ऑन टू सेशन 4. ओके, सेशन 4 is basic calculations and first one is addition. Okay, a spreadsheet helps you do many mathematical calculations like addition, subtraction, etc. Okay, एक spreadsheet जो होती है वो mathematical calculations करने के लिए help करती है, जैसे कि addition, subtraction, etc. Okay, then third one is, okay, next open a new worksheet and enter the data as shown here. Okay, एक स्प्रेडशीट ओपन करके और हमें इसमें डेटा एंटर करना है. ओके, तो आप देख रहे हैं कि ए कॉलम में जो है रोल नंबर है, एंड इन बी कॉलम नेम, सी कॉलम में इंग्लिश के मार्क्स, डी कॉलम में हिंदी के मार्क्स हैं, और ई कॉलम में मैथ्स के, एंड टोटल. ओके, तो टोटल में you don't need to use calculator. Okay, MS Excel is a powerful tool. Okay, you can calculate, you can divide and find average, maximum, all things. Okay, all things we can done it. Okay, तो हमें क्या करना है इसका सम करने के लिए. ओके, द फर्स्ट कैंडिडेट इज ग्रीश, देन इसके इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी, मैथ्स एंड
तो उसे क्या करना पड़ेगा, गो टू सेल F2, ओके, बिकॉज ऑफ F2 में ही हम ग्रीश का टोटल कर रहे हैं ना। देन एंटर सी डू प्लस डी डू प्लस E2, ओके, सी डू प्लस D2 प्लस E2 को ऐड करना है एंड प्रेस एंटर, ओके। तो C2 प्लस D2 प्लस E2 इज इक्वल टू C2 प्लस D2 प्लस E2 अगर टाइप करेंगे और प्रेस एंटर कर देंगे, देन इन तीनों का जो भी डेटा इस इन तीन सेल में जो टाइप्ड होगा देन वो उसको ऐड कर देगा, ओके। देन क्या राइटिंग है, द टोटल मार्क्स ऑफ फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट अपीयर इन द सेल F2। तो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स को हमने ऐड कैसे किया, इज इक्वल टू का सिंबल लगा के C2 प्लस D2 प्लस E2, ओके। And second way of calculating total is sum, then bracket function, let us sum function, okay। sum function का यूज़ करके भी sum कर सकते हैं, I have shown you in the class, okay ना। in cell F3, तो F3 में हम क्या कर रहे हैं, type sum E3 C3 कोलन E3, ओके। C3 से E3 तक अगर हमें, ओके, ये सम फंक्शन का यूज़ हो रहा है ऐड करने के लिए, ओके। तो क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू सम, देन जितनी सम का जितनी रेंजेस तुम्हें ऐड करनी है, जितनी सेल रेंज तुम्हें ऐड करनी है उतनी रेंज लेनी पड़ेगी, ओके। तो ओके, F3 में जो है कपिश है, B3 में उसके मार्क्स ऐड हो रहे हैं, देन C3 से E3 तक, देखो C3 देन लास्ट रेंज इज E3, तो इसका सम हमने C3 कोलन E3 को रेंज के थ्रू यहाँ पे डिनोट किया है, okay, and then press enter. This is another way of entering a formula for addition when the cells to be added are adjacent to each other. C3 is the address of the starting cell and E3 is the address of the last cell. I have told you ना, C3 जो है कपिश के जो फर्स्ट सेल के मार्क्स हैं से लेकर E3 तक की, तो उसने इस रेंज को सिलेक्ट किया है, ओके। C3 D3 एंड E3 इसको सिलेक्ट कर लिया, रेंज जो है रेंज है, कोलन इज यूज्ड फॉर रेंज, ये जो सिंबल है ये यहाँ रेंज के लिए यूज़ हुआ है, ओके। दिस इज द अनदर वे ऑफ एंटरिंग अ फॉर्मूला फॉर एडिशन व्हेन द सेल्स टू बी एडिड आर एडजेसेंट टू ईच अदर। C3 is the address of the starting cell and E3 is the address of the last cell, okay। C3 colon E3 is also called a range of cells, okay। Then next, in a similar way, sorry, okay, in a similar way calculate the total marks of other students, okay। जो ये 3 स्टूडेंट्स और बचे हैं 4, तो इनके आपको इसी वे में मार्क्स ऐड करने हैं, ओके। then you have total the marks by entering formula in 2 different ways. The cell does not display the formula but it display result of the calculation. You will see the formula in the active cell displayed in formula bar, okay, just below the ribbon, okay। now change marks of one of the students in one or more subjects. The total marks of that student will get calculated automatically, okay। automatic calculation of formulas is one of the most powerful feature of electronic spreadsheets, okay। तो जो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का, ओके। नाउ दैट इज एक्सरसाइज, create a spreadsheet to record various expenses done by you in each week of a month and then calculate the total expense in each week as well as grand total of all the weeks for the entire month, okay। now move on to session 5, okay। now the basic calculation is subtraction, okay। another math operation that can be done using the spreadsheet is subtraction, okay। अगर हम addition कर सकते हैं then we can do subtraction also ना। तो let us calculate the variance in marks secured and targeted marks, okay। तो अनु के जो मार्क्स हैं टारगेटेड मार्क्स इतने थे और मार्क्स सिक्योर्ड 78, तो वेरिएंस कितना है, ओके। तो इजी है, जैसे ऐड में हमने एक यहाँ मेथड किया था C2 प्लस B2 ऐसे करके किया था, देन यू हैव टू फिल नाउ C2 माइनस B2 अगर आपको C2 में से B2 सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। एंड देन प्रेस एंटर। द वेरिएंस फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट विल बी डिस्प्लेड in cell D2, okay। now calculate the variance for second student, okay। तो सेकंड का भी हम यूज़ कर लेंगे C2 C3 माइनस P3 से, है ना, ओके। नोट दैट यू हैव बीन एंटरिंग फॉर्मूला one by one each cell in a spreadsheet. You can copy a formula entered in one cell to other cell, okay। तो क्या है यहाँ पे that if you have
if you have entered one formula in one cell, okay, then you can copy this formula in also these cells, okay, इसमें कॉपी कर सकते हैं इसमें, देन आपको दोबारा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेल्स के एड्रेस को यहाँ पे ट्रैक कर लेगा और यहाँ पे सम कर देगा उसका, ओके ओके। वाइल इन द होम टैब क्लिक ऑन द आइकन फॉर कॉपी, कॉपी का आइकन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला कॉपी करने के लिए, ओके। Copying formula using fill handle. Fill handle helps in copying the formula easy to the adjacent cells. First delete all the formula you have entered so far in the above example in column D. Now do the following. Go to cell D2, type the formula is equal to C2 minus D2 and then press enter. Okay. Click on D2 again. Observe that the rectangular cursor in cell D2 has a small dark square in the bottom right. ओके तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन D2 अगेन, ऑब्जर्व दैट द राइट जो रेक्टेंगुलर कर्सर है जो आप कहते हैं एक्टिव सेल्स के लिए यूज़ होता है, सेल D2 में एक स्मॉल डार्क स्क्वायर होना चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड द फिल हैंडल, ओके। जो लास्ट में जो बॉक्स है दैट वन, ये वाला देखिए, हाँ ये बॉक्स, ओके। तो राइट हैंड कॉर्नर में तो है ये बॉक्स आप देख रहे हैं, तो राइट हैंड कॉर्नर में ये जो बॉक्स है इसको आप जब यहाँ पे कर्सर को लेके आएंगे देन इट विल चेंज इनटू दिस शेप प्लस, ओके। और इसी प्लस से आप माउस को यहाँ से माउस पे राइट क्लिक करके और आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, आपको जितने भी फॉर्मूले अप्लाई करने जितनी सेल्स में आप उसको ड्रैग करते जाएंगे, ओके। तो टेक द माउस पॉइंटर ओवर द रेक्टेंगल, द कर्सर विल टेक द शेप ऑफ प्लस, एज आई टोल्ड यू ना दैट जो कर्सर है वो प्लस शेप ले लेगा। नाउ क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ योर माउस एंड ड्रैग द कर्सर विद योर माउस डाउन टिल सेल D5, क्योंकि D5 हमारी रेंज लास्ट रेंज है तो यहाँ तक हमें ड्रैग करना है उसको, ओके। तो फॉर्मूला को ड्रैग करना है, नॉट कॉपी पेस्ट, एक और तरीका भी है, आप ड्रैग भी कर सकते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे रिलीज द लेफ्ट बटन, आपको छोड़ देना है, जब आपकी सेल्स डिजायर्ड सेल्स में फॉर्मूला कॉपी हो गया है एंड यू विल सी दैट द फॉर्मूला हैज़ बीन ऑटोमेटिकली पेस्टेड टू द एंटायर रेंज स्पेसिफाइड, ओके। तो एक और ये वे था ना, ओके। तो ये वे जो था दैट इज़ ईजी, आप ड्रैग कर सकते हैं माउस से फॉर्मूला को जितनी भी सेल्स में आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट फर्स्ट वन इज़ कॉपी द फॉर्मूला, आप कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी करके सेल्स में पेस्ट कर सकते हैं, ओके। Now this is also exercise. Assume that you have made a target of running 50 kilometers in a week. You run some distance every day to cover the target. Make a sheet to mention the target 50 in a cell. Record daily distance run by you in other cells of some same sheet. Okay, type formula to calculate how much distance is remaining after running every day. Okay. तो वीक टारगेट है यहाँ पे डेली, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस रिमेनिंग है, तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ओके। वीक टारगेट देखना है आपको, वीक टारगेट कितना था, फिर उसी यहाँ वे से अप्लाई करना है उसका, ओके। द नेक्स्ट वन इज सेशन 6, ओके। सेशन 6 इज बेसिक कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन, ओके। जब आपने एडिशन किया है, जब आपने सब्ट्रैक्शन किया है तो आप मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, ओके। तो another math function that is frequently used is multiplication, and in this exercise we will learn to multiply in a spreadsheet, okay. We will need to use the multiplication function here. It is used in the same way as addition and subtraction. जैसे कि आपने addition और subtraction किया था वैसे ही आप multiplication करेंगे, okay. Okay. The formula for calculating amount is unit price into number of units sold, okay. आप जैसे कि देख रहे हैं इस फिगर में, ओके, मिक्सी यूनिट प्राइस 80 है और कितनी सोल्ड हो गई है 78, ओके। दैन हीटर की प्राइस है 95 और कितनी सोल्ड हुई है 97। तो उसका अमाउंट फाइंड करने के लिए वी नो डैट वी हैव टू मल्टीप्लाई ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे कि आपने प्लस किया माइनस किया, तो यहाँ मल्टीप्लाई के लिए सिंबल है एस्ट्रिस्क, ओके। यहाँ पे ये एस्ट्रिस्क का यूज़ करके हम आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे B2 + C2 किया था एडिशन में, ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके। कॉपी द फॉर्मूला टू अदर सेल्स टिल D5, ओके। आपको पता है कि कॉपी कैसे कर सकते हैं फॉर्मूला को, एंड देन कैलकुलेट द टोटल सम सेल वैल्यू इन सेल D6 बाय यूजिंग सम D2:D5। और आपको टोटल अमाउंट अगर फाइंड करना है कि कितना सोल्ड हुआ तो आपको पता है सम भी कर सकते हैं आप, अभी हमने डिस्कस किया था डेट रेंज से, ओके।
रेंज से आप यहाँ पे D2 से लेकर D5 तक ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ D2 जो मिक्सी से शो कर रहा है एंड लास्ट वन इज D5 दैट इज कूलर। ओके, तो ये अमाउंट आप मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क का यूज़ होगा। ओके ओके ओके, देन द सेशन 6 इज़ नाउ completed। ओके, टिल देन थैंक यू। और हम आगे वीडियो, अगले सेशंस के वीडियो नेक्स्ट में आपको ओके यहाँ प्रोवाइड करेंगे। टिल देन थैंक यू।